Hi, and welcome to the story of my life and the lessons I learned with it. So, this series is all about my personal stories, from me growing up till here where I am in my life. So, this series is not gonna sound like everything else that I speak on my YouTube. Like, see that is kind of a prepared content, my thought process, a concept, and I come, fueling with passion or prepared points, which I just come and very quickly tell you and wrap it up. But this is my personal story. So this video and all the videos of this series are going to be really slow because the things that I'm going to remember are 20, 25 and even more years old, and I would need to remember them, need to get in touch with how I felt, and then share with you, you know, my thought process and feelings, how they were at that point in time. So bear with me, it's gonna be different, but it's gonna give you a different feeling and a different understanding about me and everything that I do as well. Okay, so let's get into it. So, lucky for me, my dad was in a transferable job. So, because of that, my story has proper cuts because we would change cities. So, I can tell you this city by city as we change cities, what happened in the first city, in the second city, and things like that. Okay. So let's start with a little bit of a background about me and my family because you will be hearing about these people and me, in this. So you need to know who am I, what am I, coming from and everything. Okay. So see, my family and my upbringing is not very different from you all. Most of the people who will be watching this video, most of the Indians especially, right? Uh, just another middle class family, okay, whose dad got a government job. So then, what happens in our country when a guy gets a government job? Shadi, yes, he gets an arranged marriage match. And what usually is the story of that woman who gets arranged for a government guy is somehow, in some way, if I tell it brutally, it's like who whose parents were just trying to get rid of her. Yeah, that kind of a woman it'll be. And it's just because of patriarchy, we all know, because क्या औरतें तो बोझ होती हैं एंड वो बर्डन होती हैं, इस तरीके का थॉट प्रोसेस है हमारे यहाँ पे. इनको जल्दी से जल्दी लगा देना चाहिए लाइन पे. क्रेजी बात तो ये है कि ये आज से 30 से ज़्यादा साल पहले की बात जो मैं कह रही हूँ, जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी तो ये सीन था. और आज भी ऐसे केसेस मुझे सुनने मिलते हैं जहाँ पे मेरी फीमेल क्लाइंट्स को डेली इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि वो घर का बोझ है, वो एक टास्क है और जो कि फिनिश नहीं हो रही हैं, तो पेरेंट्स का उन पे गुस्सा है इसी बात पे. एनीवेज, सो जस्ट एनी अदर फैमिली इट वाज, एंड जस्ट एनी अदर अरेंज मैरिज, गवर्नमेंट का लड़का और गांव की लड़की. और बट जो मेरी मम्मी है गाँव की भले थी, बट उनके फादर बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन सेंट्रिक थे. तो शी वॉज हैविंग मास्टर्स डिग्री बैक इन दैट टाइम. बट जानेंगे आप जैसे कि मास्टर्स डिग्री का आगे क्या हुआ उनका एंड ऑल दैट एज वी विल प्रोग्रेस. सो इट्स अ वेरी बेसिक family that you can find in India anywhere, and most of you had this same family. Okay, all right, so let's just talk about my first posting जो पापा की थी, जिसमें मैं थी. दैट वाज लाइक, जहाँ से मुझे याद है, क्योंकि मेरा जन्म हुआ बंगाल में, तब पापा की पोस्टिंग बंगाल में थी. बट जहाँ से मेरे को याददाश्त है वो है वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से. बिकॉज तब मैं थी वहाँ पे 3 साल की. 3 से 5 साल का समय जम्मू एंड कश्मीर में मैंने निकाला है, राइट. सो वहाँ से मुझे याददाश्त बननी शुरू हुई कि मतलब ना, बच्चों को याद रहना शुरू होता है कि अच्छा मैंने क्या देखा था. लाइक अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आपकी पहली मेमोरी क्या है, राइट, तो आप मुझे सबसे पहली मेमोरी आपसे पूछी जाए तो आप कुछ सा अपने 3-5 साल के जवाब रहे होंगे. तब से कुछ ऐसे एक दो से फ्लैशेस कुछ याद होंगे, फीलिंग्स कुछ याद होंगी कि कुछ ऐसा ऐसा सा तो था, ऐसा ऐसा सा था, मतलब इस तरीके का आपको एक आइडिया होगा, राइट. सो
वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की लाइफ्स मेरी रहने वाली हैं, एक है होम लाइफ और एक है घर से बाहर यानी स्कूल लाइफ, क्योंकि मैं LKG UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने लग गई थी इन जम्मू कश्मीर ओनली। ठीक है। सो और यहाँ पे हमारे क्वार्टर्स 2 बार बदले थे, सो इट्स गोना बी इवन डिवाइडेड इनटू लाइक 2 पार्ट्स। सो आई थिंक आई हैव कंफ्यूज्ड यू इनफ, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो या होम लाइफ। सो मेरे पहले कुछ याददाश्त ऐसी है कि वो घर मुझे याद है, हम लोग एक रेंटेड घर में रहते थे। एक ही कमरे का घर था शायद वो, उसमें छोटा सा एक एरिया में मम्मी ने किचन बना ली थी और बाकी बड़े से एरिया में हमारा बेड था और बाकी सारे बक्से होते थे ना, जैसे पहले बक्से लगे हुए थे, ऐसी चीज़ें याद है। और टाण बोलते थे हमारे यहाँ, जो ऊपर सामान रखते हैं ना, जैसे आई थिंक यहाँ पे भी है बट आपको ऑफ कोर्स इसमें नहीं दिखेगा, ऐसे ऊपर एक जगह बनाते हैं जिसमें ऊपर आप सामान रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी सामान रखा होता था और मम्मी ने उस पर पर्दा लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये मुझे याददाश्त है, ऐसा कुछ हमारा वो कमरा, वो घर कह सकते हैं, दिखता था। काफ़ी बड़ा था वैसे वो, इतना भी बड़ा नहीं बट हम 3 लोग थे, उसके लिए काफ़ी बड़ा था। एक छोटी सी मैं, मतलब अब बता रही हूँ 3-5 साल की तो मैं थी, कोने में खेलना होता था मुझे, कहीं उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। मम्मी अपना किचन में, पापा अपना ड्यूटी में, और घर आके बस वो हमारा डबल बेड था, उस पर सो जाते थे तीनों। तो इतनी सिंपल सा मतलब सब वहाँ पे सेटअप था। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी पहले की कुछ याददाश्त ऐसी है, मतलब ऐसे समझाऊँ आपको कि याददाश्त से ज़्यादा इसको फीलिंग बोल सकते हैं। एक फीलिंग याद है, और जो फीलिंग याद है वो ये याद है कि एक हवा में एक टेंशन होता है ना, जब 2 लोग का झगड़ा चल रहा होता है, तो उस कमरे में अगर आप भी होते हो तो आपको कुछ महसूस होता है। हवा में एक टेंशन महसूस होता है ना आपको, एक बदहवासी, एक थोड़ा स्ट्रेस है, जैसे इस एनवायरनमेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट का डिस्टेंस महसूस हो रहा है, 2 लोग के बीच में नहीं बन रही है, ये महसूस हो रहा है। मेरी पहली याददाश्त वो है कि मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ खुशी तो नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग खुश नहीं हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मतलब मेरी मम्मी और पापा के बीच में मैं एक टेंशन महसूस करती थी, जहाँ से आई थिंक मेरे एंग्जाइटी की पहली जो है मेमोरी ही वही है, वो टेंशन महसूस करना कि वो 2 लोग के बीच में जिसमें बन नहीं रही है, और मतलब कुछ बातें हो रही हैं, वो उनको कुछ बोल रही हैं, वो उनको कुछ बोल रहे हैं, और उनका जम नहीं रहा है आपस में। और इस वजह से पापा जब चले जाते हैं तो मम्मी फिर रोती है। ऐसी ऐसी मुझे कुछ ऐसी वेग सी याददाश्त है कि ऐसा होता है। अच्छा, देन इसके बाद अगली कुछ और थोड़ी विजुअल याददाश्त अगर मैं बताऊं तो है कि मैंने बेड वेट किया, राइट। बच्चों को कई बार ऐसे बेड पे सुसु हो जाता था, राइट, बचपन में। और क्योंकि मैं अपनी मम्मी को डेली इतना स्ट्रेस में देखती थी कि मतलब वो मुझे बंदी हमेशा स्ट्रेस में लगी, और पापा हमेशा बाहर जाते देखे कि पापा बाहर चले गए, कभी सामान लेने चले गए, कभी ऑफिस चले गए, कभी लाइक हमें नहीं पता कैसे करके चले गए, और मम्मी अंदर कुड़ के ऐसे रो के दुखी या गुस्सा वो रह जा रही है, और वो आंसू पोंछ के फिर मेरे को मतलब किस तरीके से शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी और व्हाटएवर। सो ऐसी सी याददाश्त है मुझे। और तो मैंने जब बेड वेट किया, आप सोचिए मैं LKG UKG जाती थी उस टाइम पे, तो कोई 3-4 साल की थी मैं, मुझे कुछ नहीं पता था किसी चीज़ का, और मुझे बस इतना पता था कि मैं मम्मी को स्ट्रेस नहीं कर सकती। मैंने बेड वेट किया है तो मम्मी को स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने प्रेस लगाया क्योंकि मैंने डेली पापा मम्मी को प्रेस करते देखती थी, आयरन, राइट। सो हमारे यहाँ पता नहीं उसको क्यों प्रेस बोलते हैं ऐसे तो आयरन होता है एनीवेज, बट या सो वो आयरन लगाया मैंने खुद ही। और जहाँ मैंने बेड वेट किया था, क्योंकि मुझे पता था मम्मी सुबह उठेगी तो मम्मी को मेरे बारे में भी स्ट्रेस लेना पड़ेगा अगर मम्मी ने ये देखा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है। तो जैसे बच्चों में आई डोंट थिंक आई एम alone like this. I have heard so many clients of mine telling me similar things कि अपने पेरेंट्स को इतने स्ट्रेस में देखा, हम अपने स्ट्रेस खुद ही मैनेज करने लग गए। वो बच्चा समझने लग गया कि मैं अकेला हूँ इस स्ट्रेस में और मुझे अपने आप को खुद ही देखना पड़ेगा। माई पेरेंट इज़ नॉट देयर फॉर मी, दे आर नॉट एबल टू बी देयर फॉर मी, विच इज़ लाइक अ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड, राइट। सो यहाँ पे क्योंकि
ट्रॉमा को सब ऐसे समझते हैं कि कुछ ना बच्चों के साथ कुछ भयानक हो जाना चाहिए तभी ट्रॉमा है. ट्रॉमा is definitely something that you should not feel and you had to feel it and you felt it alone, and something that you should have felt it but you never felt it in childhood. तो यानी वो अच्छी चीज़ें जो आपको बचपन में मिलनी चाहिए, जैसे मुझे हक था वो पेरेंट्स मिलने का जो आपस में कम से कम प्यार करते हो, उनकी बनती हो, राइट. उन्होंने कम से कम एक फैमिली प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग तो करी हो, नहीं मिले मुझे वो, राइट. सो ये ट्रॉमा है मेरा. और लोग बोलते रहते हैं लाइक यू नो ओ दे डिडंट नो बेटर एंड ऑल दैट. दे डिडंट नो बेटर देन दे शुड नॉट हैव हैड किड्स. तुम उनके एक्शंस के एक्सक्यूज़ नहीं मुझे सुना सकते हो बिकॉज आई सफर्ड बिकॉज ऑफ इट, राइट. एंड इसीलिए आज भी बोला जाता है और मैं भी बोलती हूँ कि भैया तुम गरीब हो तो आपस में रहो दोनों आराम से. मेरे हिसाब से तो शादी मत करो, अकेले रहो. सिंगल लाइफ में तुम कितना पैसा बचा सकते हो. अरे तुम गरीब हो, तुम्हें पता है, तो तुम क्यों शादी करोगे और तुम बच्चे क्यों करोगे अगर तुम गरीब हो. उनको क्यों इसमें ला रहे हो, बिकॉज तुम बेवकूफ़ हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई कॉल माई पेरेंट्स बेवकूफ़. एनीवेज नाउ सो देन बेड वेट किया, आयरन लगाया, प्लग में ऑन किया और उसको सुखाया पूरा. मम्मी पापा बगल में सो रहे हैं, मैं सुखा रही हूँ उसको. सुखा के उसके बगल में थोड़ा मैं लेट गई क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे तो यूरिन है, राइट. और हाइजेनिक मैं बचपन से हूँ. सो आई वॉज लाइक मैं साइड में ऐसे करके लेट गई. और सुबह उठी और मम्मी इज़ लाइक बेटा तुमने सुसु किया क्या रात में. एंड लाइक हाँ किया तो, पर मैंने ड्राई कर दिया देखो आपके लिए. शी इज़ लाइक ऐसे थोड़े ना होता है ड्राई. अभी पूरा मैट्रेस हमको धोना पड़ेगा, ये बेडशीट भी धोना पड़ेगा तब जाके निकलेगा. आई वाज लाइक ओ सॉरी. देन लाइक मैंने ट्राई किया क्योंकि 3-4 साल के बच्चे को कितनी अकल होगी, तो मैंने अपनी साइड से किया. So that was one of the memory that I have because I remember her being so stressed. And then मेरी जो बचपन की फ़ोटोज़ हैं आज भी जब मैं उनमें देखती हूँ तो वो छोटी सी बच्ची की आंखों में इतना दुख, डर और एंजाइटी मुझे दिखता है, विच आई एम सो ग्रेटफुल कि नाउ आई डोंट हैव दोज थिंग्स इन माई आईज. like I think you know I have to show you those photos for you to understand. So that's why I don't like visiting my childhood photos because I know how I felt in that time and none of that was a great feeling. So कुछ इस तरीके की मेरी घर की लाइफ थी वहाँ पे. और मुझे याद है कि मम्मी दुखी होती थी तो उस टाइम पे जब मम्मी रो रही होती थी तो मैं उस तरफ देखना नहीं चाहती थी बिकॉज दैट मच ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस किड्स हैव कि इफ समबडी इज़ वल्नरेबल डोंट मेक अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ इट लाइक कि हाँ तुम रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ. लाइक दैट पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू. Shut the fuck up. Mind your business. When they want to share, they'll share with you. If you are safe enough to share. So मम्मी रो रही होती थी तो मैं दूसरी तरफ देखती थी और अपना कुछ खेलने लग जाती थी कि ताकि she doesn't have to worry about this also कि मैंने उन्हें रोते हुए देख लिया. Now she has to do something about it. No. So इस तरीके से मैं देखती थी और ये I think was the start of me not liking my father. देखो मम्मी के क्या गुफअप्स थे वो तो मुझे जानने के लिए टाइम लग गया, राइट. बट पापा यहीं से ही मुझे पसंद नहीं आते थे. मेरे अंदर ये बीज उस टाइम से ही हो गया था कि यार ये कैसा आदमी है, मेरी माँ को खुश नहीं रख पा रहा है. इसकी हिम्मत देखो, आता है वापस तब भी इसी घर में, खाता है यहीं पे, खुश नहीं रख पा रहा है. और वो रो रही है, वो मेरा ध्यान भी रखती है, वो रोती भी है, वो बंद भी है इन 4 दीवारों में, कपड़े धो रही है, घर के काम कर रही है और ये खुश नहीं रख पा रहा है उसको. मतलब मेरे पापा पे मेरा जिस तरीके का गुस्सा है ना, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग लाइक दैट फॉर एनीवन. बट स्लोली आई डेवलप्ड इट फॉर माई मदर ऑल्सो. दैट्स अनदर थिंग. एनीवेज सो या सो दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ स्टार्टेड. एंड तो ये तो थी मेरी घर की लाइफ जो आप समझ ही गए हैं बाय नाउ. इट वॉज रियली ग्रिम, सैड, डार्क. नथिंग इन मी वॉन्ट्स टू रिविजिट दैट. I really think this video is the last time I'm visiting it. So yeah.
अब ये तो हो गई घर की लाइफ। अब बात करते हैं जब हमारा क्वार्टर बाहर था, क्योंकि क्वार्टर मिलने में आपको अगर पता हो कि कई सारी जो ये ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, क्वार्टर मिलने में थोड़ा टाइम लगता है अंदर, जो उनकी रेसिडेंशियल जगह होती है। तो बाहर कुछ टाइम पे हमें रेंट पे रहना पड़ता है कभी कभी। तो ये वही था टाइम हमारा जम्मू कश्मीर में, तब मैं LKG UKG जाती थी। अच्छा, LKG UKG अब थोड़ा बाहर तरफ जाते हैं, राइट। ये तो हो गया घर का कहानी। बाहर की मेरी जो मेमोरी है, जब मैं 3-4 साल की थी, क्योंकि तब मैं अपना जाती थी LKG UKG, क्योंकि 5 साल में तो आपका फर्स्ट में ही एडमिशन हो जाएगा। LKG UKG आई थिंक मैंने UKG से ही स्टार्ट किया था, बिकॉज माई मॉम थॉट LKG इज जस्ट अननेसेसरी। उस टाइप पे क्या भेजना है। आई थिंक 4 साल पे ही मैंने स्टार्ट किया था, जैसा मुझे याद आ रहा है। सो पास में ही था वो स्कूल, लगभग मतलब अपनी जो गली जिसमें मेरा घर है उसी के छोर पे वो स्कूल है, मतलब मेन रोड से कनेक्टेड। तो हम लोग उसी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ और मैं गई उसमें। ऑफ कोर्स शुरुआत में मुझे बहुत रोना आया। मेरे को छोड़ने गए थे, सिर्फ पापा छोड़ने गए थे सिर्फ, या जो भी था। तो रोना तो आया, अजीब लगा कि मतलब कैसे, मतलब अभी इतना टाइम तक सीधा घर में थे और अभी अचानक से इतने सारे स्ट्रेंज लोगों के बीच में एक बड़ी सी वो मैडम है, मतलब उनके बीच में डाल दिया। मुझे नहीं पता इनमें से कोई भी, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, कैसे लोग हैं, मुझे नहीं पता। और मुझे यहाँ पे लाइन में रहना है, यहाँ 100 रूल्स हैं, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ बैठो, ये किताबें देखो, ये करो, क्या है ये सब चीज़ें, क्यों करना है ये, राइट। तो जैसे वो बच्चे को टेंशन होती है, वैसे ही मुझे भी टेंशन थी और रोना आता था। बट इट्स अ क्रेजी थिंग जो कि रिसेंटली मुझे, मतलब ह्यूमन डिज़ाइन करके एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि एज अ ह्यूमन व्हाट इज़ योर डिज़ाइन, व्हाट्स द डिज़ाइन यू बिन बॉर्न विद। तो मेरा ह्यूमन डिज़ाइन इज़ द जनरेटर टाइप विद द सेक्रल अथॉरिटी। दोज हु नो दे नो व्हाट दिस मीन्स। एंड उसमें ये लिख के आया कि your body always had an innate way of expressing, especially with sounds and like body से कुछ चीज़ें जैसे टीयर्स निकलना, आवाज़ें निकलना, राइट, कुछ एक्सप्रेशन का आना, जैसे मैं ये हाथ यूज़ कर रही हूँ, आईब्रोज मूव करना, राइट, एक्सप्रेशन देना, कुछ पोस्चर में चेंज होना, मतलब यू आर रियली एक्सप्रेसिव विद योर बॉडी। बट आपकी लाइफ में ट्रॉमा जब होगा तो आप अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करना बंद कर दोगे। एंड दैट वाज सो ऑन पॉइंट बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर। अभी मैं जैसे आपको बता रही हूँ तो बताते बताते मुझे याद आया कि मैं पहले दिन भी मैं आंसुओं से नहीं रोई। आंसुओं से नहीं, मतलब मेरा गला रुंधता था यहाँ तक। जैसे ना आप रोने वाले होते हो तो पहले यहाँ पे एक सेंसेशन आती है, जैसे कि ब्लॉक हो गया गला, बहुत ही सैड सेंसेशन होती है वो। तो वो आई मुझे याद है। मैं इतनी छोटी थी और तब भी मैं अपने आंसू रोक रही थी। आप समझ सकते हैं, मतलब इतना कंस्ट्रिक्टेड एक बच्चा, 4 साल का बच्चा इतना कंस्ट्रिक्टेड कैसे है। मेरा घर मैंने आपको बताया कैसा था, इसीलिए ऐसे है। एंड आई थिंक मैं कुछ पास्ट लाइफ का भी कर्मा लेके आ रही होंगी कि मुझे डायरेक्टली ऐसी ही जगह उतार दिया गया। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि दशाएं होती हैं, दशा और अंतरदशा। आप जब पैदा होते हैं तो आप किसी सर्टेन दशा में पैदा होते हैं और फिर उस दशा के अंदर कई सारी अंतरदशाएं होती हैं और दशा का एक सीक्वेंस होता है, वो हमेशा सेम रहता है और उसी हिसाब से वो दशाएं चलती हैं। मैं डायरेक्टली केतु दशा में पैदा हुई हूँ। केतु का मतलब है कि डिसोल्यूशन या कुछ का पुराने कर्मों का प्रायश्चित या ख़त्म हो रहे हैं जो। तो पास्ट लाइफ कर्मा को लेकर मैं पैदा होती हूँ इस घर में, जहाँ पे, और उसमें एक लाइन लिखी थी जब मैंने ये दशा का डिस्क्रिप्शन पढ़ा अपनी, कि यू वर बॉर्न इनटू अ सिनेरियो और अ स्टोरी दैट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। एंड दिस इज सो एक्यूरेट, क्योंकि एज ए सेड, मैंने जैसे आपको भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं उस घर में उतरी हूँ और वहाँ तो पहले से ही कोई कहानी चल रही है। मतलब वहाँ कुछ नया नहीं स्टार्ट हो, वहाँ पहले से ही एक सैड कहानी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। एंड माई लक इज सच दैट आई एम ड्रॉप डायरेक्टली इन टू इट। लक क्या बोलूँगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आई साइंड अप टू बी ड्रॉप्ड इन ए ट्रोमैटिक सिनेरियो लाइक दैट, जहाँ पे वो 2 लोग खुद ही दुखी थे और मैं भी आ गई हूँ उसमें। सो वेलकम टू द क्लब। सो मैं LKG UKG पहली बार स्कूल गई, मैंने तब भी मैं रोई नहीं, आंसू नहीं निकलने दिए मैंने अपने।
क्योंकि ऐसा था कि जैसे वहाँ तक मुझे ये क्लियर हो गया था कि माई लाइफ इज़ नॉट गोना बी वेरी ब्यूटिफुल और समथिंग, इट इज़ सैड. सो जस्ट शट द फक अप and go through it. It is a sad place you've been dropped into, sad family, sad couple, sad marriage, and maybe the school and the people here are also not going to be that great. So just carry on. बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग. तुम 4 साल की बच्ची हो, तुम क्या कर लोगी, राइट? तुम तो भाग के भी जाओ तो शायद उसमें भी तुम्हारी जान चली जाए, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ. सो just follow all these big people around you are just trying to say. और on top of this क्या होता है उस स्कूल में, मैं देखती हूँ कि एक मैम हुआ करती थी वहाँ पे. वो बहुत बड़ी सी थी, ठीक है, बड़ी सी मोटी सी वो थी, और वो बच्चों को दनादन पीट रही है, राइट? वो घुसती है क्लास में और बच्चे अगर जगह पे नहीं है तो धैं 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 बच्चों के पीठ पे मारे जा रहे हैं. And I was like, okay, just when I thought it cannot get worse, it does. मैं उसकी वजह से अपनी जगह से हिलती नहीं थी. मैं अपना टिफ़िन भी उसी जगह पे खा लूँगी. मतलब मुझे आई हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि इज़ इट अलाउड वी कैन मूव, बिकॉज सी आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रामा. आई डोंट वांट फिजिकल एज वेल, सो जस्ट डोंट गिव दैट टू मी. एंड एक दिन मैंने उन मैडम को एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारता हुआ देखा कि उन्हें बच्चे को लेके टेबल पे पटक दिया. अब मुझे नहीं पता ये मेरी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, क्या है, पर पता नहीं 4 साल की उम्र में मैं क्यों ये सब क्रिएटिविटी लगाऊंगी कि मैं ऐसा कुछ इमेजिन करूंगी. पर मुझे आज तक वो सीन याद है. तो मोस्ट लाइकली वो हुआ ही है कि वो मैडम ने बच्चे को ऐसे टेबल पे मार दिया. बच्चे को लेके, बच्चा है कि धोबी घाट पे तुम कपड़े मार रहे हो यार, क्या है? और वो देख के तो मैं दहली गई, मैं घर गई और मैंने बोला मम्मी पापा मुझे बचा लो, ये मैडम एक दिन अगर मेरे को मारी मैं तो मरी जाऊंगी उसमें, तो आप जो है इनसे बात करो. और थैंक गॉड मेरे मम्मी पापा ने किस तरीके से पता लगाया कि वो मैडम रहती कहाँ है, और हम उनके घर गए. मैं तो भैया पीछे छुपी थी, शायद मम्मी के पीछे छुपी थी ऐसे करके कि मुझे देख ना ले, बोलेगी साला मेरी कंप्लेंट की, इसको तो मैं कल सबसे पहले मारूंगी. सो it's so funny. And she like of course greeted my parents and like हाँ आप कौन, कहाँ से करके. तो उन्होंने बताया मैडम नमस्ते, हम यहाँ से हैं और हमारी बेटी आपके स्कूल में पढ़ती है और थोड़ा डरती है ये आपसे, पता नहीं क्यों डरती है. ऑफ कोर्स ये तो नहीं बोल देंगे ना कि उसने आपके बच्चों को मारते हुए देखा वगैरह. सो शी से अरे मिलाओ उससे, अरे ये तो बड़ी होशियार है, अरे ये तो बड़ी समझदार बच्ची है, तो बड़ी शांति बैठती है, इसे क्यों डरना है, मुझसे कोई डरने की बात नहीं है, किस बात से डर रही है, अरे नहीं ऐसे ही पता नहीं क्यों डरती है आपसे करके. उन्होंने उसको मतलब मेरे को उनको बोल दिया कि यार थोड़ा ध्यान रखिएगा मैडम, बस डरती है आपसे, तो हमने कहा थोड़ा मिला दें करके. तो उसके बाद से पर वो वाला तो खतरा टल गया. उसके बाद से शी वॉज गिविंग मी लिटिल एक्स्ट्रा बेटर ट्रीटमेंट. एंड आई थिंक मेरे पे हाथ उठाने से पहले शायद एक बार वो सोचेंगे, बिकॉज शी इज़ लाइक यार इनके तो पेरेंट्स भी आ चुके हैं, उनको तो मेरा घर भी पता है, और पता चला फिर से आ गए बोलेंगे तो क्यों पचड़े में जाना है. तो इसीलिए शी विल नॉट जस्ट डू दैट. सो वहाँ से मैं बच गई. तो बाकी तो मेरा आई थिंक LKG UKG वो वाला स्कूल वॉज जस्ट फाइन. एंड उस स्कूल में एक घटना हुई थी उस टाइम पे. आई थिंक कुछ लोग बताते हैं कि मतलब अभी ये याद नहीं कि वो मेड अप थी या जैसे कई सारे स्कूल के बारे में ऐसी भूतिया कहानी लोग फेमस करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो एक बच्चा बताते हैं उसमें उस स्कूल में 50 दिन की छुट्टी हुआ करती थी हमारी, समर वेकेशन. उसमें वो बाथरूम में बंद रह गया. दैट्स व्हाट दे टेल कि वो बंद हो गया था उन छुट्टी में. और उसके बाद आई थिंक उसके बाद क्योंकि मेरा भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने लग गई थी और हमें क्वार्टर मिल गया था. तो लोग कहते हैं कि शायद उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया क्योंकि वो बच्चा उसमें लॉक हो गया. तो कितनी इनकी मतलब नेग्लिजेंस की वजह से मौत हो चुकी है एक बच्चे की इनके स्कूल में, तो शायद वो स्कूल उसके बाद बंद भी हो गया था. उसका भी मेरे पे बहुत बड़ा असर पड़ा था कि यार मतलब एक बच्चा बाथरूम में बंद है, यहाँ पे ये अडल्ट लोग जो हैं हमारे आसपास, इनमें सच में दिमाग है? मतलब जैसे मेरे माँ बाप खुद लड़ रहे हैं, राइट? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है. जिस बच्ची को भी ये भी नहीं पता कि ये क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ अभी, उसको तुम लड़के दिखा रहे हो. और ऊपर से
मम्मी को अपने वो रोते देख रही है, पापा को अपने चिल्लाते देख रही है, बाहर जाते देख रही है, राइट। वो इतना स्ट्रेस और इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट देख के बड़ी हो रही है, और दे आर जस्ट सो फाइन अबाउट इट, लाइक दे डिडंट ट्राई डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। एंड ये मैडम बच्चों को सर पे दे मार रही है, टेबल मार रही है, ये क्या कर रही है। और ऊपर से एक बच्चा बाथरूम में बंद है, ना वॉचमैन को पता, ना किसी टीचर को पता। मतलब लोग कितने केयरलेस हैं। और पेरेंट्स ने ढंग से जाके स्कूल भी नहीं चेक किया। 50 दिन निकल गए, वो कहाँ कहाँ सोचते रहे बच्चा होगा, और बच्चा वहाँ मर गया, उसका कंकाल मिल रहा है, उसकी डिकम्पोज बॉडी मिल रही है। व्हाट द फक, दैट वाज द टाइम आई अंडरस्टूड कि ये जो जस्ट बिकॉज किसी की एज ज़्यादा है ना, ज़रूरी नहीं कि उनमें दिमाग है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी इस कहानी से कि इतने छोटे पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख ली थी कि हस्बैंड सही चीज़ नहीं, फादर सही चीज़ नहीं, ये अडल्ट कोई सही चीज़ नहीं। अब आगे आते हैं हम, जब हमें क्वार्टर मिल गया। एक्चुअली वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी बेहतर थी क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थी। हम कोई छोटी गलियों में एक क्वार्टर, मतलब ऐसे रेंट पे उसमें नहीं रह रहे थे। क्वार्टर्स जब होते हैं तो उनमें अच्छा खासा गार्डन वगैरह, वॉकिंग पाथ, इस तरीके की चीज़ें भी मिलती हैं। तो मुझे खेलना बहुत पसंद था, हर बच्चे की तरह। तो पार्क हुआ करता था वहाँ पे जो, उसमें मैं स्कूल के जस्ट बाद बस्ता रखा घर पे, जल्दी जल्दी खाना खाया और पार्क चले गए। बस मुझे एक यही अच्छी यादें हैं मेरी, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुँच गई थी और मैं जब वहाँ पे पहुँच गए थे कैंपस में। या मैं खेलती थी जी भर के, झूले झूलती थी, घास पे कुछ कलेक्ट कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, बस मुझे बाहर छोड़ दो, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, उसके अलावा बाय दैट टाइम, मतलब क्योंकि जैसे मैं छोटी थी तो मुझे थोड़ा सा याददाश्त है, मेरी बहन पैदा हो गई थी। मेरी बहन और मेरे भाई, इन सब में सिर्फ 3-3 साल का गैप है। 3 साल बाद बहन और बहन के 3 साल बाद मेरा भाई, इस तरीके से था। तो जब मैंने आपको ये बताया कि जब मैं छोटी थी और मैं उस घर में थी, मैं 3 साल की थी, आपको याद होगा मैंने बताया, राइट। तो मेरी बहन भी ऑलरेडी पैदा हो चुकी थी, पर वो इतनी छोटी सी थी, तो मतलब मम्मी वगैरह उसमें बिज़ी रहती थी और वो सब भी था। बट क्योंकि मैं अपनी स्टोरी को अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में ज़्यादा नहीं और अपने बारे में ज़्यादा बनाना चाहती हूँ, कि क्योंकि it's just about sharing my experience and things I learned. It's story of my life, not their life. So I don't want to share a lot of that, right? So of course मेरी छोटी सी बहन उसमें ऑलरेडी आ चुकी थी और वो बहुत बीमार रहती थी और मम्मी उसमें भी बिजी रहती थी। पर मम्मी दुखी तब भी रहती ही थी, ऐसा नहीं था। अब वही दुखी औरत के ऊपर एक बच्चा था निर्भर और अब 2 निर्भर हैं। तो ये भी बहुत अजीब बात लगती थी कि भाई तुम दुखी हो इस आदमी के साथ, एक बच्चे के साथ तुम ऑलरेडी दुखी हो, तो तुमने दूसरा क्यों पैदा किया भाई। तो धीरे धीरे ऐसा समझ आने लगा कि यार ये बंदी भी कम बेवकूफ़ नहीं है, बंदा तो है ही, ये भी कम बेवकूफ़ नहीं है। दोनों बेवकूफ़ों की ही शादी हुई है, दो बराबर वाले लोगों में ही शादी होती है। हल्का हल्का ना, मतलब बीज, ज्ञान के बीज मेरे इसी टाइम पे बूने लग गए थे, इसी टाइम पे। आप धीरे धीरे मेरी स्टोरी में समझेंगे कि आज जो मैं चीज़ें इतने खुल के सिखाती हूँ, ये आज की चीज़ें हैं ही नहीं। ये मैंने 20-30 साल पहले इनका सीडिंग उसी टाइम हो गया था। तो उस टाइम पे समझ नहीं आया कि यार यू वर मिजरेबल विद वन किड, व्हाई द फक यू विल हैव सेकंड। नाउ सेकंड वन विल गिव यू इवन मोर हार्ड टाइम बिकॉज सेकंड वन वाज सिक, शी विल फॉल सिक रेगुलरली। एनीवेज, सो वो हुआ और बाय द टाइम वी रीच्ड, ये जो बाहर वाला क्वार्टर था हमारा जम्मू का, इसमें मेरा भाई भी पैदा हो चुका था बाय दिस टाइम। सो आई थिंक 5 से 6, जैसे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड ख़त्म होने तक हम वहाँ पे थे, तो भाई पैदा जस्ट ऐसे हो गया था। अच्छा, तो बाय द टाइम 3 of us वर देयर। तो इसमें मुझे याद है यहाँ पे, अब इसकी स्कूल लाइफ की बात करें तो स्कूल लाइफ वॉज बेटर हियर, क्योंकि आई वॉज गोइंग इन अ बेटर स्कूल नाउ। फर्स्ट स्टैंडर्ड एक प्रॉपर से स्कूल में थी, तो वहाँ पे मैं सेफ थी इस तरीके से स्कूल में, तो मज़ा आता था, अच्छा लगता था। और बाय दैट टाइम यूज टू भी हो गई थी LKG UKG के एक्सपीरियंस के बाद कि भाई मे भी शायद बैठना पड़ता है बाकी बच्चों के साथ, एंड एटलीस्ट घर जैसा बदहवासी और वो एंग्जाइटी वाला माहौल तो यहाँ नहीं है। पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कलर भर रहे हैं, तो चलो बेहतर ही है, अच्छी बात है। बट एक अजीब सी चीज़ लगती थी कि यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, ये सब स्ट्रेंजर्स हैं। और बच्चे तो मेरे जो आसपास हैं उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट। और ये जो अडल्ट्स हैं यहाँ पे, जो टीचर्स वगैरह हैं,
they can't seem bothered. Like any of them, like इनके आंखों में मैंने कोई वो लुक नहीं देखा कि they care about us. We are their job, just their responsibility. They have to just get done with us and just send us off like स्कूल का टाइम खत्म होने पे. We are like the responsibility. So वहाँ पे कोई मुझे केयर करने वाला नहीं लगा. कोई स्कूल में कोई केयर करता है जैसे. और आप सोच के देखें, एक छोटी सी बच्ची जो अभी तक फिगर आउट ही कर रही है वो कहाँ है, वो क्यों है, वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल और बेवकूफ़ लोगों के घर में पैदा हो चुकी है जहाँ पे इतना दुख है, स्ट्रेस है. मतलब वो दो लोग अपना ही कुछ नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं. वो इसको क्या समझाएंगे कि क्या है ये दुनिया, तुम कौन हो, हम कहाँ हैं, हम क्यों पढ़ाई करते हैं, हम क्यों स्कूल जाते हैं. मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ये रहा बचपन से कि मेरी क्यूरियोसिटी को कोई आंसर नहीं कर पाता था. मोस्टली लोग मुझे अनोइंग बोलते थे क्योंकि मैं सवाल बहुत पूछती हूँ. बट आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट मी, दैट आई एम क्यूरियस. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू डिस्कवर सो मच, एक्सप्लोर सो मच इन माई लाइफ एंड टीच सो मेनी थिंग्स. सो मम्मी पापा भी चुप करा देते थे आफ्टर सम टाइम, ये पूछती बहुत है, दिमाग ख़राब कर देती. तो फिर भाई मैंने उनका दिमाग ख़राब करना कम कर दिया. बंद तो कैसे कर नहीं सकती हूँ मैं क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ. सो दिस वॉज समथिंग. और तो वहाँ पे स्कूल में एक चीज़ होती है जो मुझे आज तक याद है कि हमारी छुट्टी होती थी ना, जैसे टाइम हो गया, छुट्टी हो गई, तो निकले बाहर और चलने लगे सब लोग, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको स्पेशली लाइन में रखा जाता है और उनको पहले निकाला जाता है कि कहीं वो बड़े बच्चों के कदमों तले दब ना जाए. राइट, क्योंकि वो गिर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है, और फिर दब भी सकते हैं. तो फिर यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एक बार हमारी कोई वो मेन गेट से निकलने के बदले घास जो थी वहाँ पे जो वायर होते हैं वो वायर किसी ने ऐसे पिचका दिए, ऐसे दबा दिए. और कुछ 12th क्लास के होंगे लड़के या 8th 9th, बड़े बड़े भैया थे, मुझे ऐसा याद है. वो भैया लोग आप भैया देखो तो तुम्हें तो पता ही है, मैंस नेचर इज़ लाइक टू सीक एडवेंचर, राइट. तो ये मतलब अरे गेट से जाते होंगे बाकी लोग, अपन तो जाएंगे वो पिचकी हुई तार से. तो वही तार पे कूदने के लिए उधर से चले गए. अच्छा, अब वो इतने धीरे धीरे हो गए, वो तादाद इतनी ज़्यादा हो गई, जो छोटे बच्चों को तो इतना पता नहीं रहता है कि कौन सा सही रास्ता है. जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वही सही रास्ता होगा. मैं अपने दोस्त के साथ जा रही थी, फीमेल जो भी मेरी दोस्त थी, वो उसका नाम भी मुझे याद है बट आई डोंट वांट टू टेक नेम्स एंड स्टफ. सो मैं गई उसके साथ ही और हम भी दौड़ने लग गए कि चलो भाई सब भैया लोग उधर से जा रहे हैं, हम भी जाएंगे. भैया क्या, दीदी भी लोग उस टाइम पे जाने लगे. कोई कूद तो सकता है ना कोई भी, बट इतनी छोटी सी जब मैं थी, मेरे लिए शायद वो वायर से कूदना, आई कैन डेफिनेटली गेट ट्रैप्ड इन इट एंड देन पीपल विल वॉक ओवर मी और रन ओवर मी एंड इट कैन बिकम अ रियली बिग थिंग. और वो मेरे को बाद में जाके स्ट्राइक हुआ जब मैं वहाँ पे दौड़ने लग गई और मैंने देखा कि यार ये वायर के ऊपर से कूदना होगा, क्या करूँ, और पीछे से इतनी भीड़ आ रही है. आई वॉज लाइक रियली स्ट्रेस्ड एंड आई स्टार्ट टू फील लाइक कौन है यहाँ पे मेरा, मैं इतनी छोटी सी अनसुपरवाइज्ड इन सब चीज़ों से आई हैव टू गो थ्रू. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दिस इज दिस प्लेस इवन सेफ फॉर किड्स, लाइक दिस स्कूल सिस्टम, बच्चों को छोड़ देना स्ट्रेंजर्स के बीच, नोबडी देयर हू केयर्स फॉर देम, लाइक इज दिस इवन गुड. लाइक तब से मेरे को स्कूल सिस्टम पे भी डाउट होने लगा कि नहीं, ये इतना कुछ परफेक्ट नहीं है ये स्कूल सिस्टम. क्योंकि बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की केयर, बच्चों के अंदर जो एंजाइटी है वहाँ पे, उसको टेक केयर करने वाला कौन है वहाँ पे? कोई भी नहीं है. टीचर्स को अपने घर जाने की जल्दी है, उनके पास 100 काम है, ये उनके लिए जस्ट एक जॉब है. वॉचमैन इन लोग को अपना देखना है, राइट. हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया, राइट. बच्चों में किस पे दोष भी दिया जाए, बाकी भी तो बच्चे ही हैं, राइट. तो सेफ नहीं है इतना, ये मुझे ये भी समझ आने लग गया. बट एक्चुअली इन दैट मोमेंट एक बड़े भैया ने मुझे स्ट्रगल करते हुए देख लिया, तो उन्होंने मुझे पकड़ा कंधों से और वायर के उस पार कर दिया. थैंक्स फॉर दैट भैया, आई डोंट इवन नो हू दैट इज, बट या. और वहाँ से हम छोटे छोटे बच्चे, हमें चल के अपनी बस तक पहुँचना होता था. अपनी बस उस टाइम पे पता लगाना कि कौन सी वाली मेरी बस है. अगर तुम गलत बस में चले जाओगे तो तुम्हें कहीं और छोड़ देंगे वो. दैट इज़ सच अ नाइटमेयर, राइट. एंड मुझे याद है मेरे को थिंक काफ़ी बड़े होने तक इस बात का फियर रहता था क्योंकि मुझे रास्ते नहीं याद होते. मेरी स्पेशल इंटेलिजेंस जो है इज़ समथिंग इन एरिया दैट आई नीड वर्किंग ऑन एंड आई स्टिल वर्क ऑन इट. मेरे दोस्त आज तक भी मेरा मजाक उड़ाते हैं मुझे, मतलब मैं अभी रिसेंटली मेरी आइज़ में एलर्जी हुई तो मैं आई हॉस्पिटल गई, ठीक है. पहली बार तो मैंने गूगल मैप्स पे सीधा सीधा रास्ता ले लिया, वो तो मैं पहुंच गई और मैं बड़ी खुश है. देखो मैं तो आप ड्राइव कर लेती, मैं तो पहुंच जाती हूँ, राइट. और अगली बार उल्टा रास्ता लिया तो मेरे आंसू निकल आए लगभग, क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी उस हॉस्पिटल तक.
तो दैट्स समथिंग अबाउट मी। मेरी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ख़राब है। तो मैं पता है बस का नंबर ऐसे याद रखती थी ना, जैसे कि मतलब यही है जो मुझे ज़िंदा रख सकता है, मतलब बिकॉज वरना मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। और दुनिया तो इतनी अनसेफ लग रही थी बाय दैट टाइम मुझे, कि घर के लोग ऐसे हैं तो बाहर के तो उससे भी बदतर ही होंगे ना, यही तो आप सोचोगे कि आपके खुद के माँ बाप की ये हाल है तो बाहर तो और पता नहीं कैसे लोग होंगे। और मम्मी भी पूरे टाइम बोलती रहती थी, बेटा ऐसे मत करना, ऐसे मत जाना, ये मत करना, और कोई स्ट्रेंजर ऐसे करे तो ऐसा लगता था पता नहीं बाहर के लोग तो पता नहीं कौन से डीमंस होंगे, सीधा खा ही जाएंगे मुझे। तो यू नो वो भैया ने मुझे ऐसे किया और मैं वहाँ से गई और मैंने बस पकड़ी, और खुदा ना खाता मैं कभी घूमी नहीं हूँ, राइट, कम से कम बस के उसमें तो नहीं घूमी हूँ, क्योंकि मैं नंबर ऐसे याद रखती थी क्योंकि मुझे पहुँचना है घर किस तरीके से। फिर वहाँ से ऑफकोर्स बस स्टॉप से कई बार मम्मी पापा लेने आ जाते थे। धीरे धीरे फिर मैं भी चल के आना सीख गई थी कि कैसे आना है, कि बाकी बच्चे आते थे, मैं बोलती थी बेटा हर दिन नहीं आ पाऊँगी मैं, तेरा भाई छोटा है, और मम्मी का पोस्टमार्टम चल रहा था एंड थिंग्स लाइक दैट। और कई टाइम पे तो मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो मम्मी लाइक मेरे से मुश्किल हो जाता है बेटा तू आ जाया कर, बाकी बच्चों के साथ चल चल के आ जाया करो, देखो ऐसे तो रास्ता है। फिर मैं धीरे धीरे आ जाती थी कि नहीं इनको टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, और क्या इंसिडेंट्स मुझे याद है अपने घर से। एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट जो कि याद है मेरी मम्मी के अंदर, क्योंकि देखो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल वुमेन कि इफ़ योर हस्बैंड इज इन शिट then you will have to do whole marriage, whole household chores, every fucking thing together, like alone, because you can't do it together, you can't do it with him. So इतना सारा बोझ, ये बोझ कभी एक इंसान के उठाने का था ही नहीं। तो जब आप उसे अकेले उठाओगे तो आपको पूरा टाइम गुस्सा आएगा, डिप्रेशन जैसी चीज़ें जैसे सैडनेस, सॉरो, अकेलापन, ये होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, होपलेसनेस होगी, ट्रैप्ड महसूस होगा। और इन सब फीलिंग्स के साथ अगर आप बच्चा पैदा कर लोगे तो आपको एक बहुत इजी आउटलेट मिल जाएगा कि जिसके ऊपर आप ये सब निकाल सको। दैट्स द सेम थिंग हैपेंड विद माई मदर, बिकॉज हर हस्बैंड वाज़न्ट शिट, सो she was always angry. It's not like she was very wise woman, of course not, because wise woman will not have a husband who is in shit. So she was filled with anger. अब इस टाइम तक जब मैं 5 से 6 साल की पहुंच रही थी, धीरे धीरे मम्मी ने हाथ उठाना शुरू कर दिया था मेरे ऊपर। शी इज़ लाइक अरे जा यहाँ से, या फिर ये कर जाके, ये नहीं करेगी मारूंगी तेरे को। बहुत अजीब लगता था शुरुआत में कि आप क्यों मारोगे, क्यों मुझे, मतलब क्योंकि मार पीट तो मैंने अपने एलकेजी में ही देख ली थी। मैंने कहा पर वो तो स्ट्रेंजर हैं और वो भी गलत था जो वो मार रहे थे, आप लोग तो मुझे बताने के लिए, वो बचाने के लिए वहाँ पे आए थे, और अब आप मारने वाली हो मुझे। सो स्टार्टेड टू फील कि है यहाँ कोई तरीके का जिस पे विश्वास कर सकते हैं। मेरी खुद की माँ मेरे को मारने की धमकी दे रही है और मार रही है, ये घर में भी शुरू हो चुका है। I was like, okay, this shit is just getting shittier. ओके एंड मतलब क्या कहते हैं ना, स्टमक ड्रॉप हो जाता है, हार्ट सिंक हो जाता है जब आपको ऐसा लगता है। क्योंकि तब तक मुझे लगता था कि कम से कम मेरी मम्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि पापा पे तो गुस्सा आता था पर मम्मी थोड़ी भली लगती थी कि अरे मेरी माँ है। तो माँ और बच्चे का कनेक्शन बचपन से होता है क्योंकि वूम्ब पे तो मम्मी के ही रही ना मैं। पर जब वो ऐसे करती थी तो मेरा पूरा दिल ही टूट जाता था कि ये मुझे मारना चाहती है। वाह ग्रेट, मैं इतनी छोटी 5 साल की बच्ची हूँ और ये मुझे मारना चाहती हैं। गॉट इट, वेयर आई एम, ना बाहर वालों से सेफ हूँ ना घर वालों से सेफ हूँ। सो देन आई स्टार्ट फीलिंग लाइक रियली सैड अबाउट माई लाइफ ऑल टुगेदर। और इसमें एक इंसिडेंट जो सबसे बड़ा मुझे याद है जो होता है यहाँ पे, कि मुझे याद है मैं 2 का टेबल वगैरह मम्मी मेरे को सिखा रही थी। अब आप बोलेंगे यार फर्स्ट क्लास के बच्चों को 2 का टेबल की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई टोल्ड माई मदर, बिकॉज माई मदर ऑलवेज बिलीव, एज आई सेड आपको शुरुआत में बताया कि मेरी मम्मी के पापा बहुत ही एजुकेशन सेंट्रिक इंसान थे। सो ही वॉज लाइक कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी वॉज लाइक हमेशा बेटा एक स्टैंडर्ड आगे की पढ़ाई करके रखो ताकि तुम्हारा पिछला जो स्टैंडर्ड जिसमें तुम अभी हो वो बहुत आराम से क्रूज तुम कर लो। सो इसीलिए वो मुझे अभी से टेबल सिखा रही थी, जबकि मैं फर्स्ट भी पास नहीं हूँ अभी तक। तो वो मुझे टेबल सिखा रही थी एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे तो खेलने जाना है, मेरे दोस्त लोग तो बाहर खेल रहे हैं, मुझे टेबल नहीं सीखनी है। और मैं मम्मी को उल्टे उल्टे आंसर दे दी थी टेबल के, मैं सही आंसर नहीं दे रही थी ताकि मम्मी ऐसे परेशान हो जाए और मुझे छोड़ दे, राइट, जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट किड्स डू। एंड मेरी मम्मी उस टाइम मेरे भाई को नहला रही थी एंड शी वॉज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज घर पे इतने काम बचे थे,
भाई का भी ध्यान रखना था, बहन भी बीमार रहती जैसे मैंने बताया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं भी ढंग से पढ़ नहीं रही हूँ। मेरी मम्मी ने क्या किया, एकदम बहुत ही पॉइंटी सी थी वो पेंसिल, एकदम आप अगर पेंसिल को अच्छे से शार्प करो तो एकदम वो पॉइंटी हो जाती है ना। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ लिया ऐसे और ऐसे पेंसिल डाल दी। मुझे आज भी याद है, आई थिंक इस उंगली में, राइट, उन्होंने मेरी पेंसिल ऐसे घुसा दी और खून ऐसे निकल के ऊपर तक गया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई मदर हार्म्ड मी टू दैट लेवल कि खून वगैरह निकल रहा है मेरे शरीर से। वो जो शॉक मुझे लगा, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक आई हैव गॉटन इन माय चाइल्डहुड कि दिस इज़ व्हाट माय मदर इज़ केपेबल ऑफ। इनको माँ बुलाना चाहिए इसके बाद। मैं कहाँ हूँ, यहाँ लोग मेरे ही जान के दुश्मन हैं। मतलब मैं अगर इनके हिसाब से चीज़ ना करूँ, अगर ये कह रही हैं टेबल याद करो और मैं ना करूँ, तो ये हिंसा पे उतर आएंगी, ये मुझे घायल करने में नहीं छोड़ेंगे। मतलब तो फिर बहुत रोई मैं, और वो आंसू मेरे शरीर से नहीं, मेरे सोल से आ रहे थे कि ये मुझे कहाँ डाल दिया है, ये कैसे लोग हैं मेरे पास। और धीरे धीरे फिर मेरी हेट मदर की तरफ भी होने लग गई, ये क्या बकवास है। अच्छा, एक इंसिडेंट मैं भूल गई जो कि बाहर वाले क्वार्टर में ही हो गया था। मेरे पेरेंट्स का जो नेचर है, मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसी से आप उनका नेचर समझ जाएंगे। मम्मी गुस्से से भरी हुई बिकॉज शी इज़ इन अ बैड मैरिज, राइट, और फादर केयरलेस एज फक, यू नो, सम गाय हु शुड हैव बीन सिंगल एंड व्हेन ही मैरीज ही इज़ द वर्स्ट हस्बैंड एंड अ वर्स्ट फादर। सो दैट गाय वाज सो केयरलेस। साइकिल पे जा रहे थे हम लोग, बाहर जाते थे पापा तो, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मुझे आउटडोर्स बहुत पसंद होते थे, तो वो वाला जम्मू का रेंटेड वाला घर था, तो मैं बोलती थी कि मुझे भी बाहर जाना है, पापा जा रहे हैं मुझे भी जाना है, कम से कम मैं पीछे बैठ के बाहर की दुनिया तो दिखाऊंगी। तो मैं बैठी हूँ पीछे साइकिल के, और मेरा पैर साइकिल के व्हील के अंदर चला गया है। वो स्पोक्स में बच्चों का पैर चला जाता था ना पुराने टाइम में, तो मतलब जब हम छोटे होते तो पैर बहुत मुलायम होता है, तो वो चला गया है अंदर। मैं पापा पापा मेरा पैर चला गया है, पापा भी ले गए, पता नहीं किस चीज़ के लिए चिल्ला रही होगी, बच्चे ना ऐसे ही होते हैं। लाइक भाई मेरा खून निकल रहा है मेरे पैर से, आज भी मेरे इतना बड़ा निशान है पैर में। और जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे अरे अरे, तो एकदम पगला गई, अरे अंकु का पैर कट गया। अंकु मेरा निकनेम है, अंकिता नाम तो अंकु निकनेम हो जाएगा, राइट, जैसे इंडिया में यूजुअली होता है। सो फिर ऑफ कोर्स मैं बहुत रोई एंड आई वाज लाइक कि कितना लीचड़ है भाई ये बंदा। मतलब एज अ बच्ची मेरे को इतनी अवेयरनेस है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और ये किस नशे में गुम रहता है। मतलब ही समवन आई वांट टू जस्ट कैंसिल, लाइक कि इनको मार दो, ये धरती पे बोझ है। मतलब इस तरीके का मुझे उनको लेके फीलिंग आता है कि इनको जिंदा रहने का हक नहीं, लाइक वैसा वाला कि तुम इतने मतलब ये, और ऐसे इंसान के साथ तुमने बच्चा पैदा किया है तो तुम भी कोई चूतिया कम नहीं। एनीवेज, सो मेरा पैर कट चुका है, मम्मी ने मेरे हाथ में पेंसिल खुद डाल दी है। नाउ यू टेल मी हाउ आई वुड फील एज अ चाइल्ड। दैट इज़ माई स्टोरी। दीज आर एंड जस्ट लेट मी टेल यू, अभी तो मैंने सिर्फ अपने पहले 5 साल बताए हैं, उसमें ही इतनी हिंसा हो चुकी है, खून खराबा हो चुका है, मार पिटाई हो चुकी है, इतनी लड़ाई हो चुकी है। अब आप आगे सोच ही सकते हैं आगे की कहानी कैसी होने वाली है। सो बट दिस इज़ द ब्यूटिफुल पार्ट, यू नो, द पेन, द वे पेन टीचेज अस। क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं ये आपके साथ रह जाती हैं। मुझे याद है मैं काफ़ी एज मेरी आगे होने तक मैंने अपनी वो उंगली देखी है कि इसी में डाली थी ना मम्मी ने पेंसिल, उनको बिल्कुल नहीं लगा। कितने आराम से उन्होंने, कितनी जल्दी से उन्होंने ये कर दिया था, मतलब बस गुस्से में आई और कर दिया था। और पापा को बिल्कुल भी, मेरी पहली चीख पे तो पापा ने सुना भी नहीं कि ऐसे ही बोल रही होगी, वाह। ये चीज़ें आपके साथ रह जाती हैं और फिर यू नो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि ये दुनिया, ये लोग सब कैसे हैं। ये दर्द का सिखाने का तरीका है। तो इसीलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैंने अपने से डबल और ट्रिपल एज के लोगों तक को काउंसलिंग दी है। जब मैं 20s में थी मैंने 60s के लोगों को काउंसलिंग दी रखी है। दे यूज्ड टू आस्क मी, हाउ आर यू सो वाइज, हाउ यू सो वाइज फॉर योर एज। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू नो हाउ, बिकॉज ऑफ पेन।
सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, एंड यू नो व्हाट अवेट्स।